उसके बाद जो है फिर आज हम करते हैं वायरल एनकेफेलाइटिस या वायरल मेनिंजाइटिस, ठीक है। So, viral encephalitis, an infection of the brain parenchyma, presents as diffuse and or focal neuropsychological dysfunction with general signs of infection depending on the acuteness of the infection and type of organism. क्या मतलब हुआ कि एक तो इनमें जनरल साइंस ऑफ इन्फेक्शन होंगे, दैट इज फीवर, बॉडी एक्स, मलेज, और along with this fever, body aches, malaise, headache, there will be neuropsychological dysfunction. तो ये चीज़ें हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे जब हम क्लिनिकल फीचर्स करेंगे, ठीक है जी। काजेस क्या है? देयर आर डिफरेंट काजेस, डिफरेंट वायरसेस which can cause this viral encephalitis. The first and the most common is arbovirus group, और इसमें हमारे पास है जापानीज ई वायरस एंड डेंगू वायरस। द सेकेंड ग्रुप इज herpes virus like herpes simplex and herpes zoster. The third group is enteroviruses including coxsackie virus, poliovirus and ecovirus. Other causes include varicella, that is chickenpox, measles, mumps, rubella, adenovirus, and rabies. So these are different viruses which can cause viral encephalitis in human beings. The clinical manifestation, the initial signs that first patient आपके पास आएगा, the initial signs are symptoms both are fever, headache, malaise, anorexia, nausea, vomiting, and pain abdomen. These viral infections somehow causes pain abdomen as well, especially in children. Then the signs gradually develops. As the disease progresses, the patient condition gets worse. For example, you can see from mild lethargy, the patient can go to deep coma. अर्ली स्टेज में उसको माइल्ड लेथार्जी होगी, और अगर बर वक्त डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ना हो, द पेशेंट कैन गो इनटू डीप कोमा. देन अल्टर्ड मेंटल स्टेट लाइक कंफ्यूजन, delirium, disorientation. Then mental aberrations like hallucinations. उसको अगर उसका विजुअल एरिया इफेक्ट है तो उसको विजुअल हेलुसिनेशंस होंगी, अगर उसका ऑडिटरी एरिया इफेक्ट है तो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगी. Then personality changes, behavior disorders, and occasionally frank psychosis. Frank psychosis. Then focal or general seizures in more than 50% of the severe cases. या तो उनको focal सीजर्स होंगे, एक साइड ऑफ द बॉडी में फिट्स होंगे उनको, या उनको जनरलाइज टोनिक क्लोनिक फिट्स भी हो सकते हैं. एंड सिवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स लाइक क्रेनियल नर्व पॉल्सीज और हेमिप्लीजिया वगैरह भी हो सकता है, ठीक है. साइंस क्या है? द मोस्ट कॉमन साइंस आर aphasia. If the speech area is infected with these viruses, the patient will present with aphasia. If the cerebellum is affected, they present with ataxia. Then hemiparesis with hyperactive tendon reflexes. मतलब स्ट्रोक के साथ, स्ट्रोक की पिक्चर के साथ प्रेजेंट करेंगे. स्ट्रोक तो नहीं होगा लेकिन स्ट्रोक का पिक्चर होगा. देन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जिसमें हमने कहा कि फिट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है. देन क्रेनियल नर्व डेफिसिट्स, स्पेशली अकुलर पाल्सीज, अकुलोमोटर नर्व की पाल्सी हो जाती है तो उसकी वजह से आई मूवमेंट इन लोगों की इफेक्ट होती है. और फेशियल वीकनेस, जब इनका फेशियल दैट इज सेवंथ क्रेनियल नर्व इफेक्ट होगा, they will present with facial weakness.
अच्छा, हाउ टू इन्वेस्टिगेट। फर्स्ट, जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा आप सिंपल टेस्ट से शुरू करते हैं, लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट। इट विल बी यूजुअली विद इन नॉर्मल रेफरेंस रेंज। मतलब है कि यहाँ पर कोई डिरेंजमेंट नहीं होगी, उनका टीएलसी भी नॉर्मल होगा इनिशियली, और उसमें वाइट सेल्स भी नॉर्मल होंगे, लिम्फोसाइट्स भी नॉर्मल होंगे, ठीक है। इस तरह इफ़ यू check the electrolytes. Why we are checking electrolytes? Because this patient presents with mental abnormality. तो अगर किसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो तो उसको भी मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइट हम चेक करते हैं, एंड दीज आर यूजुअली विद इन नॉर्मल रेंज। बट इफ देयर इज syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone, that is SIADH, तो उसमें क्या होगा, इन लोगों के सीरम में there will be hyponatremia, ठीक है। Then serum glucose to rule out hypoglycemia, because hypoglycemia के साथ भी कोमा हो सकता है और डिफरेंट मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड दिस लेवल will be used as a baseline for determining normal CSF glucose values. इसके बाद फिर हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रेटिनिन एंड लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे to assess organ function and the need to adjust the antiviral doses. अगर suppose there is renal impairment or liver impairment, liver failure, तो फिर we will use low doses of antiviral drugs. Then platelet count and coagulation profile indicated in patients with chronic alcohol use, liver disease, और if DIC is suspected. देखिए ये जो इनकेफेलाइटिस है ना, इसका पिक्चर मिलता है इनकेफेलोपैथी के साथ, जिसे हम हेपेटिक इनकेफेलोपैथी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हेपेटिक इनकेफेलोपैथी में क्या होगा, वहाँ प्लेटलेट काउंट भी कम होगा, कोगुलेशन भी उनकी इम्पेयर्ड होगी, पीटी प्रोलॉन्ग होगा, बिकॉज जो लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस है वो वहाँ नहीं होगी। ठीक हो गया। तो इसके लिए ये है कि इसलिए हम इनका प्लेटलेट काउंट और कोगुलेशन प्रोफाइल करते हैं टू रूल आउट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस। देन यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, परफॉर्म दिस असेसमेंट इफ SIADH इज सस्पेक्टेड। तो उसमें क्या होगा, यूरिन में सोडियम कम होगा। एंड देन यूरिन एंड सीरम टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग। हो सकता है पेशेंट को कुछ पॉइजनिंग हुई हो, क्योंकि इनकेफेलाइटिस का पिक्चर और इनकेफेलोपैथी का पिक्चर जो है वो मिलता जुलता है। तो इसलिए क्या करना है, आपने उनका सीरम टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग करनी है कि कहीं उनकी कोई पॉइजनिंग तो नहीं है। अगर पॉइजनिंग है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। फिर जो हमने कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है डायग्नोस्टिक, वो है लंबर पंक्चर एंड CSF एग्जामिनेशन। Like polymorphonuclear cells may predominate early in the illness but are replaced by mononuclear cells, that is lymphocytes, within hours. तो अर्ली स्टेज में उसमें बस सिर्फ आपको न्यूट्रोफिल, TLC, वाइट सेल सारे रेज मिलेंगे, लेकिन चंद घंटों के बाद बस फिर वहाँ पर लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगी, ठीक है। देन वायरल कल्चर आप करा सकते हैं CSF पे, वायरल कल्चर टू लुक फॉर द cause of the viral encephalitis. Then viral PCR may identify the virus. Then serology test antibodies to a specific virus like Japanese E virus, dengue virus, mycoplasma, और there should be four-fold rising. मतलब है कि आज आपने serological टेस्ट किया और उसमें आपको एंटीबॉडीज मिले, और 1-2 दिन बाद आपने रिपीट किया एंड देयर इज 4-fold राइज, 4 गुना, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि ये वायरस यहाँ अभी भी एक्टिव फॉर्म में मौजूद है। तो लंबर पंक्चर, वायरल कल्चर, वायरल PCR एंड वायरल एंटीबॉडीज आप करा सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस। अच्छा, ये स्लाइड हम पिछले 3 लेक्चर से देख रहे हैं, आपको याद होगी। तो इसमें जो देखें, फर्स्ट जो कॉलम है वो वायरल हेपेटाइटिस का है। तो इसमें क्या होगा, ओपनिंग प्रेशर इज नॉर्मल और समटाइम्स हाई, कलर इज बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर CSF फ्लूइड होगा, ठीक है। सेल्स जो हैं स्लाइटली इंक्रीज 5 to 1000,
और डिफरेंशियल में क्या है उसका, मेनली लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स है। फिर इसमें CSF प्लाज्मा ग्लूकोज रेशो जो है वो नॉर्मल है, और प्रोटीन जो है वो भी इसमें नॉर्मल टू स्लाइटली हाई है। तो ये आपका CSF पिक्चर होगा। ये स्लाइड आप ज़रूर इसको अपने जहन में रखें, बिकॉज यू मे गेट CSF इंटरप्रिटेशन इन योर एग्जाम। वहाँ पर ये CSF का एक पिक्चर होगा, या वायरल या बैक्टीरियल या ट्यूबरकुलस, और उसमें आपसे क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। फिर अदर टेस्ट जो हम करा सकते हैं उसमें EEG है, EEG इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राम, ठीक है ना, इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राम जो है ये हम करा सकते हैं, एंड सर्टन EEG वेव पैटर्न्स कैन सजेस्ट इनकेफेलाइटिस ड्यू टू हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। और वो कैसे वेव्स होती हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल पीरियोडिक फोकल स्पाइक विद स्लो एक्टिविटी इन द बैकग्राउंड। तो ये यूनिलेटरल और बायलेटरल पीरियोडिक फोकल स्पाइक आते हैं, और ये पैटर्न हो तो आप कह सकते हैं कि ये हर्पीस सिम्प्लेक्स एन्केफेलाइटिस है। फिर आप इमेजिंग की तरफ जा सकते हैं, क्रेनियल इमेजिंग। इसमें हम देखें एक साइड पे MRI है और दूसरे साइड पे CT ब्रेन है। तो MRI देखिए, उसमें लिखा है सेंसिटिव फॉर अर्ली पीरियड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एन्केफेलाइटिस। तो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हर्पीस सिम्प्लेक्स है, तो ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है इन दी अर्ली पीरियड, आपको इमीडिएट डायग्नोसिस में हेल्प करती है। और इसमें क्या मिलेगा आपको, एडीमा इन दी ऑर्बिटोफ्रंटल एंड टेम्पोरल रीजन्स, एडीमा इन दी ऑर्बिटोफ्रंटल एंड टेम्पोरल रीजन्स। और CT में क्या लिखा है, इट इज़ लेस सेंसिटिव देन MRI। सो जब आपने कराना ही है यू शुड गो फॉर MR, ठीक है। MRI में इट इज़ मोर सेंसिटिव एंड मोर स्पेसिफिक। अब ये पिक्चर देखें MRI के, इसमें आप देखते हैं ये जो पिक्चर D और E है, इसमें देखें F भी देखें, पिक्चर D, E, F ये MR स्कैन है, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो वाइट एरियाज नज़र आ रहे हैं पेराइटल एरियाज में, पेराइटल रीजन में देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर ये जो है इनकेफेलाइटिस है। इनकेफेलाइटिस इस तरह नज़र आता है। ये देखें, इसमें भी आपको ये जो पेराइटल एरिया है, आपके हाथ जो लेफ्ट हैंड है आपका, उस साइड पे देखें बेजल एरिया में वाइट कलर का आपको एरिया मिल रहा है, दिस इज एन्केफेलाइटिस, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक काजेस, ऐसी कोई भी काज जिससे मेंटल फंक्शंस इम्पेयर हो जाएं, उसमें हमारे पास यूरीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, जितने भी मेटाबॉलिक काजेस हैं उसको आप पहले एक्सक्लूड करें, ठीक है। देन ड्रग्स एंड टॉक्सिकोलॉजी, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिससे मेंटल फंक्शंस इम्पेयर्ड हो जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइजन्स हैं, तो उसकी हिस्ट्री भी लें, ड्रग हिस्ट्री, ठीक है। और हमने कहा कि उनका ब्लड कलेक्ट करें फॉर टॉक्सिकोलॉजी। देन मास लीजन, अगर ब्रेन में कोई स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन है, कोई ट्यूमर है, तो वो भी प्रेजेंट कर सकता है एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ, ठीक है। उसमें हो सकता है फीवर ना हो लेकिन नॉर्मल है। अच्छा, देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ द एपिलेप्सी, जिसमें एपिलेप्सी जिसमें आरा के तौर पे मेंटल फंक्शंस इम्पेयर हो जाते हैं और फिर जनरलाइज फिट्स होते हैं, और उसके बाद भी पेशेंट थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो ये भी क्लोज आपको मिलेगा कि ये भी इनकेफेलाइटिस की तरह पिक्चर है, लेकिन इसमें भी फीवर नहीं होगा, इनकेफेलाइटिस में आपको फीवर मिलेगा, ठीक है। फिर सब अरेक्नाइड हेमरेज, अगेन इट विल प्रेजेंट विद हेडेक, वोमिटिंग और नेक स्टिफनेस भी हो सकती है इसमें। देन एक्यूट कन्फ्यूजनल मिग्रेन, मिग्रेन की एक वैरायटी है जिसमें पेशेंट जो है वो हेडेक से ज़्यादा एक्यूट कन्फ्यूजन के साथ प्रेजेंट करता है, तो ये एक्यूट कन्फ्यूजन जो है ये इनकेफेलाइटिस के साथ कंफ्यूज हो सकती है, ठीक है। देन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, डिजीजेज लाइक सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, इसमें भी क्या होता है कि वास्कुलाइटिस हो जाता है, ठीक है, ब्रेन में, एंड द पेशेंट कैन प्रेजेंट विद हेमिप्लीजिया, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स एंड समटाइम, और इसमें फीवर भी हो सकता है। तो ये सारे इसके क्लोज डिफरेंशियल्स हैं जिसको आपने क्लिनिकली और इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से एक्सक्लूड करना है, ठीक है।
ये पिछला स्लाइड देख लेते हैं। खैर है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने कहा कि इनकेफेलोपैथी और इनकेफेलाइटिस ये बड़े क्लोज आपस में डिफरेंशियल्स हैं। इनकेफेलोपैथी लाइक हेपेटिक इनकेफेलोपैथी बिकॉज ऑफ द रीनल फेलियर, इनकेफेलोपैथी बिकॉज ऑफ सम ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें फ़र्क कैसे करेंगे? देखिए, फीवर एक पैरामीटर ले लें आप, तो इनकेफेलोपैथी में देयर विल बी no fever, very uncommon. Fever is very uncommon. While encephalitis, fever is very common. Headache, encephalopathy में it is uncommon. While encephalitis, headache is a feature. Then altered mental state. तो आपका जो encephalopathy है, there is steady deterioration. मतलब है कि अगर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो रही है तो पहले स्टेज 1 होगी, फिर स्टेज 2, फिर 3 और फिर जाके 4 में कोमा में चला जाएगा। ठीक है, वाइल इन एनकेफेलाइटिस इट मे फ्लक्चुएट, कभी ज़्यादा वर्स होगी, कभी बिल्कुल वापस थोड़ी सी इम्प्रूव कर जाएगी। ठीक है, देन फोकल न्यूरोलॉजिक साइंस ये आपको एनकेफेलोपैथी में नहीं मिलेंगे, वाइल एनकेफेलाइटिस इट इज़ कॉमन। ठीक है, तो इसी तरह सीजर्स देख लें। सीजर्स दोनों में हो सकते हैं, जनरलाइज्ड सीजर्स, ब्लड में ल्यूकोसाइटोसिस एनकेफेलाइटिस में कॉमन है, सीएसएफ में वहाँ भी आपको प्लियोसाइटोसिस, सेल काउंट रेज हो जाएगा, और ईईजी जो है वो डिफ्यूज स्लोइंग जो है वो आपको एनकेफेलोपैथी में मिलेगी और एनकेफेलाइटिस में फोकल होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट एनकेफेलोपैथी फ्रॉम एनकेफेलाइटिस। ट्रीटमेंट यह है कि देयर इज कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिसके लिए स्पेसिफिक, कुछ ऐसे वायरस देखें, इधर लिखा है कि नो सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट एग्जिस्ट फॉर द रिलेटिवली कॉमन एक्यूट अर्बोवायरल एनकेफेलाइटिस। जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि इसमें जापानीज ई वायरस है और डेंगू वायरस जो है वो इसमें शामिल है, तो इसके लिए कोई प्रॉपर क्योर ट्रीटमेंट नहीं है। जिनके लिए ट्रीटमेंट है वो हम आगे देखते हैं। उसमें हमारे पास दो वायरसेस हैं, दैट इज क्लिनिकली डिस्टिंग्विशिंग दिस acute arboviral encephalitis from the two potentially treatable acute viral encephalitis is important. जो अर्बोवायरल वायरल एनकेफेलाइटिस है उसके हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन दो ऐसे वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसकी हमारे पास ट्रीटमेंट है। सो इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अर्बोवायरल एनकेफेलाइटिस। और जो ट्रीटेबल काजेस हमारे पास हैं उसमें है हमारे पास herpes simplex encephalitis, which is a sporadic and lethal disease of neonates and the general population, and less common varicella zoster encephalitis, which is deadly in immunocompromised patients. So these two जो हैं, इसके अलावा भी एक दो और हैं जो कि पोटेंशियली ट्रीटेबल हैं, उसके हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए इनको डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है फ्रॉम अदर काजेस। ट्रीटमेंट क्या है? जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जो हमने कहा कि herpes simplex वायरस एनकेफेलाइटिस के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है, एंड दिस इज एसाइक्लोविर। और चिल्ड्रन एंड एडल्ट द डोज इज 30 मिलीग्राम पर kg पर डे, 14 to 21 डेज इसका ड्यूरेशन है। फॉर वेरिसेला जोस्टर एनकेफेलाइटिस द ड्रग ऑफ चॉइस इज अगेन एसाइक्लोविर। ठीक है, देन साइटोमेगेलोवायरस एनकेफेलाइटिस, इसके लिए ड्रग हमारे पास है जिनसाइक्लोविर और फोस्कानिर। सो दीज आर दी ट्रीटेबल वायरल एनकेफेलाइटिस टाइप्स। जो आपका अर्बोवायरस है लाइक जापानीज ई वायरस, वो बहुत कॉमन है, लेकिन उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। ठीक है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है? जैसे हमने कहा कि इन लोगों को ब्रेन एडिमा होता है, so to reduce intracranial pressure and brain edema, what should we do? We should restrict fluid intake, then prevent hyperventilation if the patient is on ventilator, then lower the body temperature by cold sponging and antipyretic drugs, and then steroids. Steroids जो है ये आपका ब्रेन एडिमा एंड प्रेशर को कम कर देता है, तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इसके अलावा रेस्ट, गुड न्यूट्रिशन, एंड अगर SIADH है तो फ्लूइड बैलेंस उनका अपने बरकरार रखना है, देन एंटीपायरेटिक ड्रग्स, एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग कन्वर्जन्स लाइक फिट्स, मतलब जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक फिट्स हैं, या फिर उनको आप एंटी कन्वर्सेंट दे सकते हैं।
वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेज़ापिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट सीजर्स फिट्स इन दिस पेशेंट। फिर एक्यूट साइकोसिस अगर पेशेंट को है और बहुत डिस्टर्ब है, साइकोसिस है उसको और बिहेवियर है, तो यू कैन गिव हेलोपेरिडोल, इट विल काम द पेशेंट डाउन। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसकी वायरल एनकेफेलाइटिस की, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक्यूट पीरियड कॉम्प्लिकेशन एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट में हमने कहा कि सीजर्स, दे कैन हैव फोकल और जनरलाइज्ड सीजर्स, there is inappropriate ADH syndrome which will cause hyponatremia, then raised intracranial pressure, again it can cause fits, फिर respiratory arrest, coma, and ultimately death. In chronic period complication जो है उसमें chronic fatigue syndrome, depression, personality changes, gait disorders, हमने कहा एटेक्सिया वगैरह इन लोगों में, memory disorders, स्पीच डिसऑर्डर, अगर उनका स्पीच एरिया इफेक्ट है, दे कैन बिकम म्यूट और स्पीच डिसअर्थ्रिया वगैरह डेवलप कर सकते हैं। देन विजुअल प्रॉब्लम्स, इफ द विजुअल एरिया इज इफेक्टेड, अगर बच्चों में हो जाए तो वो अगर रिकवर भी कर ले तो दे कैन हैव मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, हेमीप्लीजिया, और सम टाइम दे कैन डेवलप सीजर्स, मतलब एक एक्यूट सीजर्स है ना, वो तो अगर ट्रीट हो गया पेशेंट तो वो सीजर्स ख़त्म हो जाएंगे, बट सम टाइम उनमें एपिलेप्सी डेवलप हो जाती है, सीजर जो है वो उनके लाइफ लॉन्ग होते हैं, देन यू हैव टू प्रिस्क्राइब दीज ड्रग्स लाइफ लॉन्ग। ठीक है, प्रोग्नोसिस क्या है? द प्रोग्नोसिस ऑफ वायरल एनकेफेलाइटिस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, द विरुलेंस ऑफ द वायरस, जितना वायरस ज़्यादा विरुलेंट होगा the prognosis will be poor, and the second is patient's factor, like previous health of the patient, immune status, like if the patient is on chemotherapy, transplantation हुई है उसको, या HIV AIDS का patient है तो prognosis will be poor. If the immune status of the patient is good, तो prognosis is good. Then age of the patient, if the age is less than 1 year or more than 55 years, तो prognosis will be poor. ठीक है, और फिर एनी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाए तो वो परमानेंट रहेंगे और वो भी प्रोग्नोसिस पुअर होगा। ठीक है, देखिए अब ये हमने एक कंपेयर किया है ट्रीटेड पेशेंट विद अनट्रीटेड पेशेंट्स। बीइंग इन कोमा, ऑन प्रेजेंटेशन, सीवियर इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन एंड पुअर प्रोग्नोसिस। ट्रीटमेंट में क्या है, अगर आप ट्रीट करते हैं बर वक्त तो मोर्टेलिटी इज 20% and morbidity is 40%, mean in 40% of the patient there will be residual neurological deficits, या cranial nerve palsy होंगी, या उनको hemiplegia होगा, या उनको fits develop हो जाएंगे। ठीक है, and if you leave untreated, बर वक्त ट्रीटमेंट ना हो तो mortality is 50 to 75%, while morbidity is 100%, सब 100% लोगों में कुछ ना कुछ neurological deficit रह जाएगा। ठीक है, अब है जनाब प्रिवेंशन क्या हो सकती है। प्रिवेंशन में हमारे पास हमने कहा कि एक काज जो है वो डेंगू वायरस है, तो कंट्रोलिंग दी मॉस्किटोस बाय मॉस्किटो रिपेलेंट्स, और स्प्रे करा सकते हैं आप, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देन एनिमल वैक्सीनेशन, तो इस तरह रेबीज कंट्रोल हो जाएगा, और ह्यूमन वैक्सीनेशन फॉर जापानीज ई वायरस। अच्छा, अब ये यहाँ अच्छी बात है कि चूंकि जापानीज ई वायरस के हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वी हैव वैक्सीन फॉर इट, सो आप बच्चों को और बूढ़े लोगों को यू कैन वैक्सीनेट अगेंस्ट जापानीज ई वायरस इन्फेक्शन।